We are Russians. Nobody can outdrink us. He said, all the best. This is Salman Khan's party. The vodka never stopped flowing. There were people who rolled down the steps and all that, Russian crew members. Salman had not even swayed. We were shooting a song, Kaanta Laga. And then we got a call from censor board कि you have disturbed the moral fiber of the nation. बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने हमको बुलाया. फिर हमें बोले देखो विनय, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, राधिका विनय, ये सेक्सी कब ये कब नहीं है, क्या करो, ये अच्छा नहीं होता. This is not good for things. लकी के सेट पे एक और चीज़ हुई थी, सुना मैंने ऐसा कि रशियंस जो हैं वो वोडका के शौकीन होते हैं. उनको बड़ा घमंड था कि हम पार्टी करते हैं. तो सलमान भाई आए और उन्होंने कहा कि आई शो यू. नेक्स्ट डे सेट पे लेट हुए थे आप लोग या सब पहुंच गए थे? वो तो उनका they were so confident that no, Salman has called us for a party. And we said, watch it out. He said, don't go. Okay. He said, don't To the go. crew members. Crew members. Okay. He said, you will not come to work the next day. We are Russians. Nobody can outdrink us. He said, all the best. This is Salman Khan's party. You just don't underestimate. No, we're Russians. Oh my God. The vodka never stopped flowing. The food never stopped flowing. And the people who were drinking, they kept drinking and proving that they are the best and the biggest in the vodka consumption. Right. So they consumed as much as flowing. And finally everybody was... There were people who rolled down the steps and all that, Russian crew members. And when they came the next day, half of them were late, half of them were holding their heads. Because they're very disciplined Russians. Right. They don't like to be unprofessional. They said, the worst they said, it was just shameful, is Salman had not even swayed. He was like standing like a rock, and all of us were just rolling down and swaying and, throwing up and, all kinds of things happening to them. They said he was also drinking with us and nothing happened to him. He said, well, that's Salman Khan for you. We warned you that don't do it, but... उनका नेक्स्ट डे शूट था, उनका नहीं था? हाँ, वो आ गए, वो टाइम पे आ गए. अरे उनको कुछ नहीं, वही बोला, he was not even swaying. We said no, he doesn't. Russia, that was a very tough terrain, because we used to drive down every day 1 hour towards the location. So we all were living in one hotel, Salman and all of us in one hotel, and we used to drive down 1 hour towards the location every day, and come back. So, but next day he was ready on time and on the set on time. शूटिंग हुई कि नहीं हुई? हुई 60. दूसरों के हाथ बहुत बुरे थे, वो तो ठीक थे. तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सबको फिर मत धर के करना ही था. हम दबंग में गाना डायरेक्ट कर रहे थे, मस्त मस्त दो नैन. हाँ जी. तो वो थी कारपेट वाली स्ट्रीट है, सोनाक्षी जा रही है कारपेट, वो स्ट्रीट से एक साइकिल वाला आता है, टकराता है, गिरता है. तो फिर वो फूल लेके आते हैं. तो एक था वो शॉट, वो जीप के पास खड़े हुए थे और वहां से उसको चल के आना था सोनाक्षी के पास फूल लेके. और फिर वो तो एक टेक उन्होंने दिया था, जो उनका एक स्टाइल है ऐसे चलने का, जो चुलबुल का स्टाइल था. None of us knew, we were all part of Dabangg 1. Right. Yeah, and then he walks like that and comes and all. तो पोतवा सेट कि यार तेरा, मेरे को लगता है ऐसा शोल्डर शेक करके. हाँ, शोल्डर शेक करके आया था. तो हमने कहा यार ये मुझे लगता है वो, दैट वाज सलमान सर's improvised shot, एंड हमने कहा कि यार लग नहीं रहा है अच्छा यार. वो सलमान सर बोलते इस तरह से चल के आओ. तो उन्होंने चल के तो आए थे, पर जब हम एडिट कर रहे थे तो फिर हमने वही टेक रखा जो उन्होंने किया था. बिकॉज उन्होंने कुछ बोला, अच्छा ये नहीं अच्छा लगा, ठीक है मैं दूसरा कर लेता हूँ. ही गिव नॉर्मल. अच्छा, ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. आपने कहा कि एक और टेक दे दिया, बट जब मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ एक टेक देते हैं. इज इट ट्रू और जस्ट अ मिथ इन द मार्केट? Not with us. No, Not with us. मैंने वही बट तर्क होना चाहिए. जी. एंड आप एम ही नहीं बोल सकते सर. हाँ, एक और ये क्या बात है? ये कोई प्लीज यू हैव टू से, बिकॉज ही इज वेरी शार्प एंड ही इज स्मार्ट. बट अगर आप उनको रीजन दोगे जी कि वी रिमेम्बर दिन में हम लोग ये शूट कर रहे थे, अगेन रात में हम लोग नाइट सीन कर रहे थे, तो उनको ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट दिया था. वो लाइट्स वाली स्ट्रीट थी जी. एंड उनको काले चश्मे दिए थे. तो हम तो गाना कर रहे थे और वो आखिरी गाना था जो हो रहा था दबंग का.
तो अरबाज जो प्रोड्यूसर थे एंड जो डायरेक्टर थे फिल्म के, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि गाना है तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल का ले गए चैन, और जिनके नैन इतने सुंदर हैं आपने उनके नैन कवर कर दिए गॉगल्स के साथ। तो वो हमारे साथ डिस्कशन कर रहे थे, हम भी डिस्कस ही कर रहे थे कि नहीं नहीं ये होगा वो होगा। भाई दूर बैठे हुए थे, कुर्सी में बैठ के सब नोटिस करते। फिर आए बोला हाँ व्हाट्सअप, तो फिर उन्होंने डायरेक्टर ने बोला कि ये है, तो उनको ठीक लगा। देन ही टर्न एंड लुक्ड एट अस कि हम क्यों चाहते थे। तो हमने कहा आपने जो कैरेक्टराइजेशन हमें बताया है तो उसका प्यार किस तरीके से हम ऑब्जर्व करें, तो आप काले चश्मे में हैं, काले ड्रेस में, पर हमारे ऑपोजिट हमने ये झिलमिल वाला हाथ डाला है वो जो आपके गॉगल्स में रिफ्लेक्ट होगा, जो एक तरीके का एक नजरिया है चुलबुल के प्यार का, जो थोड़े से रंगीले चुलबुले किस्म के। तो that's why it needs to be all black, otherwise the red hearts will not stand out. So 1 second, he says, I love the idea. Let's take. Khatam. And well, rest is history as to it became the design of the poster design. Yes. चश्मे के अंदर हार्ट वाला। हाँ, तो फिर ऐसे उनको आइडिया कहाँ से आया था आप लोगों के पास? ये आइडिया कहीं से अडॉप्ट हुआ था या एकदम बस वही जो अपन ने बिगनिंग में बोला, अच्छा ट्रेंड सेटर के ट्रेंड फॉलोअर। बस When you are not saying कि मुझे अब चुलबुल पांडे how he'll he romance explained, is a whole he explained process. his character to us very well when he had Okay. called in for the song. तो बहुत कम शब्दों में, पर जी वो राइटर के एहसान है तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर कि कैरेक्टर क्या है, तो आपको समझ आ जाती है कि वो इनफैक्ट वहां से ही सफर तो एक्चुअली मुश्किल शुरू हुई। फिर वो जितने नैना सॉन्ग हुए ना वो सब हम ही ने ट्रैक किए हुए हैं। जी। तो अब एक मस्त मस्त दो नैन सुपर हिट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट में तो दगाबाज नैन, अब चुलबुल रज्जो शादी हो चुकी है, सब हो चुका है, अब इस रोमांस को कहाँ लेके जाए। तो फिर उसका तो एक कोई जर्नी रहती है सारे के सारे। So yes, to answer your question, he does give takes and he does, but yes, you have to have a proper Correct. logic. Why? If you can convince him, then he'll do it 100 times for you. Okay. But if you can't, and you say, sir, मेरा बस मन कहता है, no, that's जो हुआ। We were shooting a song कांटा लगा जी at that time. We never thought that we are at the later on when it became a hit and all that, and then we got a call from censor board कि you have disturbed the moral fiber of the nation and all. मैंने कहा राधिका हम लोग Tell me more about this. जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो हमने कुछ ये कोई moral fiber तो सोचा ही नहीं था कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं नेशन का। तो कुछ भी जो पूरी जो जर्नी हुई है ना लाइफ की, so many songs and so many hits and so, never thought like Yeah, that. I remember when we were doing वास्ते also, हमने कहा हम गाना ब्रेक करेंगे, जी हम फिर गाना शुरू करेंगे। तो हम दोनों बैठे हुए हैं, हमने कहा डायलॉग्स तो लिख लेते हैं डायलॉग ही। तो सोचा क्या क्या पूरी कहानी गाने के बीच में आ रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, हम लोग कोर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, बिकॉज द डायलॉग इज कमिंग इन द मिडिल ऑफ द सॉन्ग। तो एग्जैक्टली 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हुआ, तो हम दोनों ने सुबह 7-8 बजे बैठ के हमने वो सारे डायलॉग जी लिख लिए थे एंड फिर ध्वनि को दिया था, बोला सीख ले बेटा ये डायलॉग्स बीच में। हमने कभी नहीं सोचा कि वो डायलॉग गाने जितना वायरल वो उस टाइम पे, माने इतने इंस्टा रील्स मीम्स आए थे, एग्जैक्टली 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया। वो इट्स सच अ सिंपल जी thought, you know, so you don't really think that that's the impact that it's going to have, you know? राइट बट कांटा लगा यस कांटा कांटा लगा बात की आपने। ये इंटरेस्टिंग है यस प्लीज कांटा लगा। आंखों में चमक आ गई आंखों में चमक आई सर। अरे इसके भी सेंस कोड इसका भी नो इसका भी सारा क्रेडिट सलमान सर को ही जाता है। अच्छा मैं और राधिका जी कर रहे थे, वी वर डूइंग दीज आपके फेवरेट फाल्गुनी मैम के सारे गाने जो थे सारे के सारे, अब वो क्यूट गाने होते थे सारे, जी। यू नो, फिर वो गजलें सब ये वो, तब आप समझिए एज अ क्रिएटिव वी वर डूइंग ऑल दीज क्यूट सॉन्ग्स, गजलें वजलें, एंड मेरे और राधिका को बोला यार अब म्यूजिकली वी नीड सम चेंज यार। जी तो उस वक्त फिर हमने कहा यार क्या करें, कुछ वो नहीं हो रहा था। सो देन वन डे वी वेंट टू सलमान हाउस एंड सलमान ने बोला भेज दो उनको अंदर। तो वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो उस वक्त एक झंकार बीट करके आता था पाकिस्तान से, वो आते थे ठीक ऑटो में चलते थे ना अपने। तो सलमान सर एक्सरसाइज कर रहे थे और वो कुछ किशोर कुमार के गाना झंकार बीट पे बज रहा था और जी। एक्सरसाइज कर रहे थे।
तो राधिका, मैंने कहा यार ये यार इतना बड़े सुपरस्टार अगर इस साउंड पे एक्सरसाइज कर रहे हो और एंजॉय करते हुए कर रहे हैं, इट्स पंपिंग हिम हार्ड। आई थिंक जो साउंड अपन लोग ढूंढ रहे थे ना, ये करते हैं। उस तो तब तक रीमिक्स नाम की कोई चीज थी ही नहीं। देयर वाज नो साउंड, देयर वाज नो जॉनर कॉल्ड रीमिक्स इन दिस कंट्री, यू नो, एवर। हमने कहा यार ये करते हैं हम लोग। एंड फिर हम लोग आए एंड फिर हमने वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ हमारी रीमिक्स की जर्नी का। कलियों का चमन, कांटा लगा, चढ़ती जवानी, शहरी बाबू, फिर वो तू है वही, फिर वो आयशा टाकिया का शेक इट डैडी, शेक इट डैडी। सो ये सारा, तो वो ये जॉनर जो हुआ ना, अब क्योंकि ये रिक्रिएटेड म्यूजिक था और ये रीमिक्स था जो कि उससे पहले तो होता थे, तो हम लोगों को तो ये सलमान सर से ही वहाँ से ही थॉट आया। फिर वो क्योंकि ये रिक्रिएटेड साउंड है तो it takes you organically to a nightclub. The sound only takes you to a club. The sound only takes you to a little bit of a sensual kind of a visualization, you know. पर हमें नहीं लगा हमको सेंशुअल। हाँ, हमें भी लगा नहीं था एक्चुअली उसका। को वैसे नॉटी को एक लड़की की कहानी मैंने वही मैंने को बोला, वो जो लड़की कर रही थी ऐसा निकाल के, मेरी 4 दोस्त है, उसमें से एक लड़की थी शीतल जो अभी अमेरिका में है, वो मेरे को मारे ही पकड़ के ऐसे नहीं। वो ये करती थी, हम लोग जब नाइट क्लब जाते थे, वो रास्पबेरी राइनोसरस एंड वो टाउन में जाते थे, तो वो हमको यहाँ डालता था ना डीजे, तो वो अपना हमेशा ऐसा करके बोलती थी इधर डाले। तो वो तो दोस्त करती थी, वो कुछ तो वो ही करा दिया उससे, बोला कि नहीं ये कूल होगी क्योंकि शीतल बड़ी कूल थी, तो उससे वो करा दिया। जो वो मैगजीन पढ़ रही थी, वो तो हम गर्ल्स स्कूल में थे, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी गर्ल्स स्कूल में किया। अब गर्ल्स स्कूल में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जब आप बड़े होते हो तो नन्स होती हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो तब नए नए ये पॉर्न मैगजीन्स आ रहे थे, बॉयज एंड ऑल, तो हम लोग खरीद लिया करते थे और डेस्क ऐसा ऊपर करके पढ़ा करते थे। तो मुझे एक दिन टीचर ने पकड़ लिया था और बाहर क्लास के बाहर नील डाउन कराया था पूरे क्लास, क्या गंदगी पढ़ रहे हो, हम पेरेंट्स को बुलाएंगे, कंप्लेन करेंगे। तो बस ये 2 थॉट्स तो थे। ये बट इसमें एक डिस्कवरी थी, मुझे भी नहीं पता था कि मेन पोर्न मैगजीन्स नंगे नंगे लड़के, तो इन्होंने बोला नहीं आती है, तो फिर उसकी पे स्कूल में फिर उसकी पढ़ लिया। एक आती थी, एक मैगजीन आती थी, पूरी क्लास पढ़ती थी। अच्छा, तो फिर उसकी ढूंढाई शुरू हुई पूरे बॉम्बे में कि यार पोर्न मैगजीन जिसमें नंगे लड़के हैं वो तो ढूंढो यार। तो लड़कियों के पता, असिस्टेंट भी हमारे परेशान, सर पूरा बॉम्बे छान मारा है, लड़कों की पोर्न मैगजीन मिली रही है। तो फिर कहीं वो सेकंड स्टैंड मैगजीन स्टोर में बांद्रा हिल रोड में एक मिली, बांद्रा के हिल जो रोड पढ़ पे रही मिला वहाँ पे। तो मैंने कहा हम तो करते थे, स्कूल में मिलते थे, पता नहीं कहाँ से कोई एक लड़की ले आती थी, तो मैंने कहा टीचर निकालती थी यार क्लास से, इट वाज जस्ट सच अ सिंपल थिंग, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया उसके बाद। और एंड इट वाज प्योरली एज अ फैशन, द थॉन्ग व्हिच वाज गिवन टू इट, इट वाज ऑल प्योरली, एंड वी डिडंट रियलाइज दैट we are disturbing the moral शेफाली को कोई हेयर स्टाइल नहीं सूट करा था। अच्छा, इतना ट्राई किया, वो तो नहीं थी, उसने तो कुछ किया नहीं था, वो तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। क्या करें। विनय जी की बेटी की एक डॉल है जिसकी आंखें ऐसे खुलती, प्यारी सी डॉल है, उसकी सेम हेयर स्टाइल ऐसे 2 ऐसे। तो मैंने कहा यार ये शेफाली और ये एक जैसे लगते हैं, विनय ये हेयर स्टाइल ट्राई करते। अच्छा, तो उनकी गुड़िया की हेयर स्टाइल है वो, उनकी बेटी की गुड़िया की। तो हम तो वो स्पेस में गाना बना रहे थे, हमें कभी मेंटली हमने सोचा नहीं कि लोग बोलेंगे सेक्सी हॉट, ये सब तो था ही नहीं। इट वाज जस्ट अ यंग थोड़ी सी रिबेलियस गर्ल की कहानी हम लोग बना रहे थे, तो वो सब सोचते नहीं। बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने हमको बुलाया, फिर हमें बोले देखो विनय, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, राधिका विनय, ये ना ये सेक्सी काम ये कब नहीं है, क्या करो, ये अच्छा नहीं होता, दिस इज नॉट गुड फॉर थिंग्स। तो हमने कहा सलमान बोल दिया सलमान वो नहीं, नॉट सलमान, ये सलमान ने तो हमको वो दिखाया था ना, वो कवर कर सकते हैं आप यहाँ। तो इसका तो हमने कहा इट इज नॉट अबाउट द सेक्स, बिकॉज ही नेवर इवन थॉट अबाउट इट लाइक दैट, यू नो, कि इट वाज सच अ इनोसेंट एक्ट फ्रॉम आवर साइड, यू नो, दैट वे। Salman said this. Yes. Salman didn't say that once. No, he said y'all. No, he just said, he said y'all have got a very nice pure mind. So then we had to explain the same thing to him. Right. वो समझ गए होंगे। हाँ वो समझ गए। He was there. He said, why is your head going there? He asked us that question.
It was just guiding you. So Yeah, because सेंट्रल बोर्ड ने आपको कॉल किया, आपने कहा कि क्या हुआ था वो, आपको किसने कॉल किया था, सेंसर बोर्ड ने क्या कहा? no censor board का नहीं था, in the sense they said so they said I think उस वक्त अनुपम खेर जी उस वक्त सेंसर बोर्ड के चीफ थे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि I think NDTV called us and said कि you guys are disturbing the moral fiber of the nation, so the censor board chief and you have to sit in front of each other and we need to do a debate about it, and sort this out about the whole thing. We said forget it was just an innocent act, we didn't even realize that it's going to be do that. So that day until today we always उसका हमने टाइटल रखा था डीजे डॉल। अच्छा, तो हमको हमेशा ऑफर आता रहे डीजे डॉल पार्ट 2 तो कर ही दो आप। हमने कहा ये नहीं करेंगे, बस हो गया, ये वहीं छोड़ देते। क्या सिनेमा का इम्पैक्ट या किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट इतना होता है कि सोसाइटी बिगड़ सकती है आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सो। यू थिंक सो? आई थिंक सो। आई एम वाचिंग सनम तेरी कसम के जो क्लिप्स देख रहे हैं ना हम अभी, so there are so many people who are walking out and saying that I wish Inder was my boyfriend, I wish जब मैं मरूं तो मेरे बाजू में वो भी आके लेटे और वो भी आके मेरे साथ में ऐसे ही करे। So it does leave an impact on their mind. In fact, the other day I think हमारे प्रियंका only said that clip to us saying that some father did the pinddan of his daughter. So it's almost like an honor killing, So एक mental honor killing है वो। Okay. So of course, especially violence. it does It affect. It does affect. It does. One should not. We all get affected by everything we read, it's easy to whip up emotions, right? Right. In any direction that you want, especially if you're young and you're very delicate, in a delicate state of mind. Yeah, she said, in fact, we were offered a film very recently to direct, in which the climax of the film is that the boy chases the girl, the girl refuses, and in the end, because she doesn't agree, पे जो भी misunderstanding होती है, and girl goes and kills the boy. The boy goes and kills the girl in the end. Because if I can't have you, nobody will have you, She said, we are not going to direct this film. Because this is not the message we are going to give, want to ever give to the people. So what is the meaning of this? In the end, the boy goes and kills the girl after stalking her. Right. I said, what is the story? I don't want to do it. We were offered some shitloads of money for it. He said, no, money doesn't matter. We're not even going to do a film like this. We don't believe in this story. It does have an impact. And then there was some last scene where he goes to heaven and all that. That was the worst scene. Yeah. Then they realized it, मारने के बाद फिर they show him, उसको भी मार देती है पुलिस. And वो कुछ heaven में उसको दिखाते हैं with some angel singing and all. I said, माने And he meets the girl. He meets the girl in heaven. माने ये क्या पिक्चर है? ऐसे हमें करनी नहीं है पिक्चर. कहानी नहीं अच्छी लगी हमें. So yes, it does have an impact, and one should be real responsible. One should be while making the film. Fun, entertainment, joy, all that. At least the intent Right. when you're making the film Yes. should be या तो आप हंसो, रो, कुछ सीख के जाओ, मजे करो. But when you're doing it, the intent should not be to bring out violence and morbidity and So even unknowingly, when Kaanta Laga did this, we never directed We another. never did They it did a again. DJ Doll Part 2. yeah, we did Though, do it. like the money gets really good monies get offered to do a sequel to such a hit franchise. जैसे आप लोगों की भी आंखें चमक गई कांटा लगा के नाम से कि एक बार ही उसकी When we did it, that was just a very joyous, young, kind of a fun kind of a song. But very consciously then we said, no, if this is the impact it's going to have, this kind of thinking, then it's better to just park it, We haven't done any remixes of that kind. हमसे कांटा लगा से लग के before that thing we did चढ़ती जवानी. जी. That also became a bit of a thing. Then we said no. If this is, and then when they said no, they think that the moral fiber of the nation gets disturbed because they're such huge hits and huge songs. Then I said, I think we should just take a step back. And like I said, such a senior person who's our mentor. We really respect him. And he also said, don't do it. It's not a nice thing. Right. So I said, okay. And since that day, we haven't directed any song like that. To watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.